where we celebrate resilience, empowerment, and the triumph of the human spirit. Today, we delve into stories that defy the ordinary, tales of strength, identity, and unconventional success that remind us all of the power of perseverance and self belief. I, Cheryl Cosmos, warmly welcome you all to the sixth edition of the Orange City Literature Festival, organized by the SGR Knowledge Foundation, powered by Raisoni Education. Our guests today have shortened limitation, risen above challenges, and paved their own paths to greatness. Join us as we uncover the extraordinary journey, broken barriers, and redefine success in their own unique ways. Please welcome Madam Anisha Motwani, Madam Anuradha Marwa, and Dr. Chanda Sinha Babu. It is my pleasure to introduce a truly It is my pleasure to introduce a truly inspiring individual, Madam Anisha Motwani, a seasoned business strategist, speaker, and columnist, known for her unique ability to transform deep insights into actionable strategies. She has consistently turned challenges into opportunities and revitalized entire sector. Recognized as top 50 women in business by Business Today for 3 years. We are also honored to have Madam Anuradha Marwa, a professor, author, and playwright, a distinguished professor of English at Zakir Hussain Delhi College, and an acclaimed author of 4 novels and have 5 plays. Her work, including Idle Love, Dirty Picture, and Aunties of Vasant Kunj, are known for their deep exploration of contemporary issues and complex character building. Now, we are also delighted to welcome Dr. Chandra Sinha Babu, who will be moderating this session. Dr. Sinha Babu is the head of HR at Guru Network Private Limited. We are fortunate to have Dr. Sinha Babu. Dr. Sinha Babu, extensive experience and expertise guiding today's discussion. Ladies and gentlemen, without any further ado, we now hand over the session to the esteemed dignitaries. Over to you, moderator ma'am. Thank you so much. Hello everyone. So as this is the panel discussion, we will first start with understanding the books by the authors so that we can have the discussion and we understand what we are trying to conclude or trying to convey. So I would like to start with you, Anisha. Your first book said Storm the Norm. The second book says She Stormed the Norm. Your form is also Storm the Norm. So let us know, why this name and what your book covers. I mean, what kind of women's stories do you cover in your book particularly? No, first of all, thank you everyone. What language should I speak in, Hindi or English? Hindi. Okay. Both. Okay. Okay. So, both Anuradha and I, we discovered that we are actually from Rajasthan, so we are equally comfortable in Ajmer. So we are equally comfortable in English and Hindi, yeah? So we are going to switch between English and Hindi. So, this is my second book. My first book is Storm the Norm. The starting point, I'm not an author. मुझे लिखना नहीं पता था कि मुझे आता भी है. When I actually started writing, मुझे लगा I'm a default author. But I was deeply pained कि जब हम स्कूल में जाते हैं, colleges में जाते हैं, what we are studying is international success. What we study is Apple कैसे बन गया, Netflix कैसे बन गया, Uber कैसे बन गया. We don't study about कि इंडिया में businesses इतने सारे business हैं. आपने कभी सोचा टाटा टी, ओके, टाटा के बारे में तो पढ़ते हैं, जैसे टाटा टी. कभी हमने सोचा कि रेमंड इंडियन ब्रांड, कभी हमने सोचा MTR एक्सपोर्ट करते हैं वो आजकल रेडी टू ईट फूड, ओके. ये कंपनीज इंडिया में बनी है इंडियन प्रोडक्ट्स को समझते हुए, इंडियन ऑडियंस को समझते हुए, इंडिया के माहौल को समझते हुए. तो उसके सक्सेस कैसे होता है. तो दैट वाज द फर्स्ट बुक, स्टॉर्म द नॉर्म, 20 बिजनेसेस दैट स्टॉर्म द नॉर्म. एंड सेकंड बुक लिखी कोविड के टाइम में. 8 साल निकल गए क्योंकि लाइक आई सेड आई एम अ डिफॉल्ट ऑथर, और कोविड में टाइम बहुत था, तो घर में से सब लोग काम कर रहे थे. आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम, माई हस्बैंड वॉज वर्किंग फ्रॉम होम, बच्चे भी घर में थे.
तो होता ये था कि घर में काम कर रहे हैं आप, सब लोग घर में सिर्फ काम कर रहे हैं, पर कुछ भी प्रॉब्लम होती थी ना, वैसे तो हम ऑफिस चले जाते थे सुबह उठ करके, बट बिकॉज घर से काम कर रहे हैं तो सडनली आई रियलाइज्ड कि दरवाजे की घंटी बजेगी तो भी मुझे ही खोलना है जाके, मेरे हस्बैंड भी है वहाँ पे, मेरे बच्चे भी हैं, वहाँ मुझे ही खोलना है। फिर 50 रुपए का छुट्टा है तो मुझे ही देना है, आज खाना क्या बनेगा मुझे ही करना है। तो देन आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली women were getting the short end of the stick, बिकॉज जब वो घर से बाहर निकल जाते हैं काम करने या पढ़ने तो अलग बात है, पर अगर तुम घर में हो तो माना जाता है कि अगर घर का काम है तो औरतें ही करेंगी, पर हम तो बाहर का भी काम कर रहे हैं, हम तो ऑफिस का भी कर रहे हैं काम। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी सक्सेसफुल विमेन हैं जो कि घर के माहौल में रह के सक्सेसफुल हुई हैं। तो सेकंड बुक आई रोट अबाउट 17 विमेन, शी स्टॉर्म्स द नॉर्म। तो इसमें विमेन जो हैं वो अलग अलग तरीके की हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो सब लोग जानते हैं वो एक फिल्म इंडस्ट्री से दो हैं, निम्रत कौर और अधुना अख्तर। तो माय चॉइस ऑफ विमेन फिल्म इंडस्ट्री के अलावा स्पोर्ट्स से है, पैरा एथलीट, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया रितु करडियाल, यू हैव बिजनेस से लेडीज हैं, लावण्या नल्ली, वो नल्ली साड़ी साउथ वाले, पोर्टिया, सुपर्णा टाइटन की सीईओ हैं। तो इस तरह के दीपाली गोयनका जो वेल्सपन ग्रुप की सीईओ है, तो उस तरह के विमेन कवर किया। एंड द चॉइस, चाहे फर्स्ट बुक में बिजनेस की डिसीजंस हो कि कौन सा बिजनेस कवर करना चाहिए या कौन सी विमेन लेनी चाहिए, एक चीज कॉमन थी कमिंग टू योर कि स्टॉर्म द नॉर्म क्या मतलब है कि अगर मेरा मानना है कि अगर हम कन्वेंशनल तरीके से काम करेंगे जैसे हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है, हमें सोसाइटी ने बोला ये नॉर्म है ऐसे ही करेंगे तो ही ठीक रहेगा, पर जो भी सक्सेसफुल हुए हैं ना उन्होंने उन नॉर्म्स को चैलेंज किया है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो विमेन हो। अगर हमसे कहा जाता है कि विमेन आर नॉट मेंट फॉर इंजीनियरिंग जॉब्स एंड टफ जॉब्स, बट रितु करडियाल जैसे लोगों ने प्रूव किया है कि नहीं, विमेन कैन ऑल्सो डू इंजीनियरिंग जॉब्स। ओके, अगर बिजनेस में भी यही कहा जाता है कि इंडिया में बिकॉज ब्रिटिशर्स हमको टी का कल्चर देके गए थे और आज भी वो देखें चाय डिप 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 करके पीते हैं, पर हम तो देसी हैं, हमको तो इंडियन चाय चाहिए, कड़ी हुई चाय, व्हाटएवर। तो टाटा टी ने कैसे वो जो कड़क चाय बगानों वाली व्हाटएवर, तो वो कोई भी लिखता, तो जिसने भी, चाहे बिजनेस हो चाहे इंडिविजुअल्स हो, जिसने भी एग्जिस्टिंग कि हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है ऐसे करेगा तो ठीक होगा, उसको चैलेंज किया है, स्टॉर्म किया है, नॉर्म्स को स्टॉर्म किया है, वो सक्सेस पाते हैं। सो दैट इज द लॉन्ग आंसर टू अ शॉर्ट थिंग कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द टाइटल। ओके अनिश, हम आपसे फिर बात करेंगे और डिटेल में। अनुराधा, आपके लिए भी यही क्वेश्चन है कि आपका टाइटल भी है आंटीज ऑफ वसंत कुंज। मुझे बड़ा पसंद है। हाँ, वसंत कुंज एरिया मुझे भी पसंद है। सो हमारे यहाँ वी हैव, अगर हम लेडीज की बात करें तो हमारे पास बच्चे हैं एंड वी हैव सम मिड एज लेडीज ऑल्सो। तो बच्चों को तो नहीं बोलते हैं, पर जब फर्स्ट टाइम आप आंटी सुनते हैं तो कैसी फीलिंग आती है, ये बहुत वो है। yesterday we were discussing कि आंटीज ऑफ OCLF हम भी है, बट आपको कैसी या तो throw some light at why this topic and what do you cover in the book about female who are like in general, जो हमारी day to day life में हम ladies हैं उनके बारे में आपने लिखा है, so if you can please throw some light on that. Sure. So first of all, thank you, Chanda, and thank you OCLF for inviting me here. क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छी गिफ्ट मिली, एक अजमेर की long associate, we didn't know each other in Ajmer, but that's no reason why we can't be friends now because of Ajmer. We studied in the same school and college. And thanks to OCLF, we are on the same stage today. And we got to know that only after we were put on the panel. So this was this wonderful gift that I got in Abuja. And fascinating listening to what went behind Stop the Norm. Okay, so Aunties of Vasant Kunj. Aunties of Vasant Kunj, अगर आप ये पूछे कि is it about success, I would be a little hesitant
whether it is about success. But yes, it is about victory. I prefer the term victory. And ये जो victory के बारे में जो मैंने लिखा है, ये victory बाहर नहीं है, it is within. It is a victory over oneself. कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एक इसमें नॉर्म्स की बात भी आती है, टू बोरो माय फेलो पैनलिस्ट टाइटल स्टॉर्म द नॉर्म. तो इसमें कहीं ना कहीं नॉर्म की भी बात एक आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक नॉर्म तो सोसाइटी सेट करती है, दूसरा हम अपने लिए भी नॉर्म सेट करते हैं कि ये हम हैं और ये हम नहीं हैं. तो कहीं ना कहीं दिस बुक इज अबाउट दैट एग्जिस्टेंशियल डायलेमा कि मैं कौन हूँ. हमको लगता है कि हम जानते हैं कि हम कौन हैं, और कोई अगर ये पूछता है कि हमारे बारे में, तो हम बहुत कॉन्फिडेंटली ये आंसर करते हैं कि दिस इज व्हाट आई एम अबाउट. I'm an activist. I'm a feminist activist, and this is my identity. मेरी एक कैरेक्टर है डेनी आंटीज ऑफ वसंत कुंज में, जो अपने आप को ऐसे ही सोचती है और ऐसे ही प्रेजेंट करती है. She works for an international NGO, और she looks at the world in terms of a war, a gender war, which is, I suppose, it is there, isn't it? So she looks at the world in terms of a gender war between men and women, and looks at situations कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक gender war operate कर रहा है, घर में भी, बाहर भी, हर जगह, you know. तो एक मेरी कैरेक्टर ये है Denicia, but she likes to be called Deni. वो उनकी लाइफ भी is unconventional. She's a single mother, और वो जो अपनी बेटी के फादर के बारे में वो ना बोलती है ना वो जवाब देती है अगर कोई पूछे भी. तो ये है दीदी, एक कैरेक्टर मेरी. दूसरी मेरी कैरेक्टर है मिसेस गांधी. मिसेस गांधी है जो शायद हम लोग जब आंटी बोलते हैं, और जब कहा आंटी, तो मैंने यहाँ पर एक रिस्पॉन्स देखा जो मुझे एज अ आई एम आल्सो अ थिएटर पर्सन, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो इट एक्सप्रेसेस नहीं आंटी नहीं बोल रहा, डोंट कॉल मी आंटी. that can be another sort of book, I suppose. तो जो वो मिसेस गांधी है, वो वही आंटी है जो हम लोग नहीं होना चाहते. कि मिसेस गांधी है, उनका भरा पूरा घर है. She has 3 children. She has 1 mother-in-law. She has 2 domestic helps, and she has 1 husband. तो पूरा कुछ है घर में. And of course, she's very proud of it. She has all the gadgets. I'll come to the story of the middle class, but middle class घरों में काफी important होता है क्या हमारे पास है. तो उनके पास पूरा सब कुछ है जो होना चाहिए. माइक्रोवेव भी है, ये भी है, वो भी है. तो शी इज ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग. और जो मेरी तीसरी कैरेक्टर है वो है शैलजा, जो who I look at as a woman in love. She was in love, and she got her heart broken. Her boyfriend, who she was living with for 13 years, abandoned her, and then she moved to Vasant Kunj. So Vasant Kunj में ये तीनों मिलती हैं. नहीं तो their paths wouldn't have crossed, because ये एक दूसरे जैसी है ही नहीं बिल्कुल भी. Why would they be friends with each other? No reason at all. But Vasant Kunj ऐसी जगह है जहाँ flats पास है बहुत. तो आपके it's like quite like a mohalla. So you are into each other's life whether you like it or not. क्योंकि आपका water problem भी है, electricity breakdown भी है, वो आपको साथ में deal करना है whether you like it or not. So this is how their friendship comes about. But
इसमें एक ये existential चीज जो which is I suppose the drama in my book, ये होता है कि जब वो एक दूसरे के करीब आती है, एक दूसरे के बारे में पता करती है, पहले तो रिजेक्ट किया उन्होंने, मिसेस गांधी doesn't want to have anything to do with this dasher activist जो सारे टाइम कटखली सबका काट लेती है सर, अगर कोई बात करे वैसे तो she is a problem. Then Shailaja is also a little, इन्हीं से सब करते हैं वहाँ पर. In fact, she's and she's a very good-looking woman, So she's got everybody, quite all the men, not young men, all the men are interested in her. But वो obviously क्या कहते हैं, खास नहीं करती किसी को. तो उसको आंटी एसिड भी कहा जाता है. In a sort of whatever way. तो why would they be friends with each other? But you have to deal with everything together, so they come in contact with each other. And then it so happens that in the drama of the book, to get that victory that I did just, which is I suppose where my book is about a certain kind of success, to get that victory, they realize that they have to be like each other. The housewife and the woman in love has to become a little bit of an activist, especially when the housewife finds out that her husband is carrying on a merry affair with his secretary. तो फिर वो शायद वो जो बहुत आइडियल होम था वो थोड़ा सा डगमगा जाता है. तो ये जो उनकी जो आइडेंटिटी थी, मैं हाउसवाइफ हूँ, वो थोड़ा सा करके कुछ और बनना पड़ेगा. वो ठीक एक्टिविस्ट नहीं बनती पर बुद्धिस्ट बन जाती है, बुद्धिस्ट चांटर बन जाती है. और बुद्धिस्ट चांटर जब बनती है तो बुद्धिज्म में इंक्लूसिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो एक दूसरे की बात सुनना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो जब सुनती है तो लगता है कि कुछ बात इसमें सेंस है, ये ऐसे ही बातें हो रही हैं. Similarly, similar things happen to Shailaja as well, the woman in love. And जो Mrs. Gandhi है, वो भी काफी मतलब this life she gets very very attracted to it. Oh sorry, and yes, Dini is falling in love, तो उसका हुआ कि she is terribly in love with the most unsuitable man. वो है Iyer Brahman, और ये जो man she falls in love with, he's drop dead handsome. That's the romance in my book. He's really handsome, but he's working class and he's a Dalit. So Anuradha, I would like to stop you here. Sorry. About the book, because we would like to have certain questions based on both the books. So can I just finish, because it's not left it in the air. Yeah, sure. Yeah. So basically the drama in the book is about, becoming like each other, and in that sense I've introduced the concept of various selves that we have. हम एक person नहीं हैं, हम बहुत लोग हैं within ourselves. Shakespeare ने कभी कहा था ना, all the world's a stage and all its men merely players. तो उसमें मैंने उसको ही यूज करके कि हम women जो हैं वो, and women के बारे में है इसलिए, तो women play many roles simultaneously. एक के बाद एक नहीं, वो शायद हमारे पास टाइम नहीं है, लेजर नहीं है कि एक के बाद एक रोल प्ले करेंगे, पर एक ही लाइफ में एक ही टाइम पे या several people. So this is what my book is about. So Anisha, your characters, आपके जो characters हैं book में वो real characters हैं, real women हैं who have achieved and people know them, right? आपके जो characters वो fictitious है, लेकिन somewhere in the world they may be real also. We don't know. There may be a Mrs. Gandhi, there may be Yes. right? So we don't know. So do you feel while writing or while doing research for your book, आपको ऐसा लगा कि आज ये तो characters जो हैं maybe certain years age हैं, certain time period के हैं, लेकिन आज भी do you feel कि there is हमारा जो societal barrier है, या women still are having that upbringing की या conditioning कि हमारी जो सोच है, they have like अगर हम English में word use करें, so it is like belittling kind of thoughts.
ऐसा, और इसीलिए शायद वुमेन में या आज के बच्चियों में सेल्फ डाउट है कि हम ये सक्सेस पा सकते हैं या नहीं, लाइक यू मेंशनिंग कि इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हैं। तो आपके बुक में ऐसा कोई कैरेक्टर है जो आप रिलेट कर पाओगे इस चीज से? And then I'll come with the same question to you. You know, before I answer that, यहाँ पे there are lots of boys and men in the room, which is a good part in a women's section. Tell me how many आजकल के youngsters ये वो कितने लोग यहाँ पे घर का काम कर रहे हैं? घर में हाथ बटाते हैं मम्मी का? लड़के कर रहे हैं? Seriously? मम्मी से पूछेंगे, मम्मी भी बोलेगी? बिना पूछे करना पड़ता है। You know, according to me, देखो women का self limiting जो doubt and जो belief है ना, वो तभी बदलेगा when this generation, and it's so heartening to see so many boys raising their hands and saying कि you know हम भी करते हैं जो so called औरतों वाला काम होता है. Similarly, women will get up and say कि हम भी वो काम कर सकते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो इसरो साइंटिस्ट क्यों ना बनना हो, चाहे वो एक बैकपैक उठा के दूसरी कंट्री में जाके स्टडी करके वापस आना है. अगर जेंडर रोल्स कोविड ने सिखा दिया ना हमको कि अगर घर में रहना है, जब बाइयां नहीं आती थी और दरवाजे बंद थे, तो मैंने अपने बेटे को कहा था कि एक डील है बेटा कि बर्तन ना साथ में मांजेंगे, ठीक है, तुम्हारा मेरा मी टाइम भी हो जाएगा, हम मांजते जाएंगे, तुम धोते जाना, ठीक है. एंड बिलीव यू मी, झाड़ू एंड पोछे में भी हमने स्प्लिट कर लिया कि बेटा पोछा ना मैं तुमको डंडे वाला दे दूंगी, तुम चलाते रहना, क्योंकि मुझे पता है तुम झुकने वाला तो मेरे से भी नहीं होता, और झाड़ू मैं कर दूंगी, ठीक है. दिस इज कोविड टॉट अस दिस, ओके. एंड उसके बाद से इफ दैट चेंजेस नो चंदा, सोसाइटी विल चेंज. क्योंकि आज तो मम्मी है, मम्मी और बेटे का रिलेशनशिप जो है एकदम प्योर लव वाला होता है. द मिनट वही चीज जब आपकी वाइफ आती है साथ में, एंड इफ शी स्टार्ट्स वर्किंग एंड इफ यू एक्चुअली स्टार्ट सपोर्टिंग योर वाइफ, तो ये जो सेल्फ लिमिटिंग डाउट्स और जो बिलीव्स होते हैं ना, वो सब खत्म, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे. बिकॉज आप लोग अपने वाइफ को एनकरेज करेंगे. इफ शी वांट्स टू वर्क, सी एवरीथिंग इज अ चॉइस, जबरदस्ती नहीं है कि व्हाटएवर. इफ शी वांट्स टू वर्क, इफ शी इज एजुकेटेड, आप उनको सपोर्ट करेंगे. अगर कभी घर में जरूरत पड़ गई तो आप उनका हाथ बटाएंगे. सो फॉर मी, यस, इस किताब में भी देयर आर सो मेनी वुमेन who have actually written spoken about कि कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम है उनकी लाइफ में. जो भी सक्सेसफुल हुए हैं ना, लाइक दे से बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, आई थिंक बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन इज अ ह्यूज सपोर्ट सिस्टम ऑफ द फैमिली. बहुत जरूरी है. एंड दैट इज व्हाट विल मेक द वुमेन सक्सीड. एंड जो सेल्फ लिमिटिंग डाउट्स एंड बिलीव्स है ना, वो चले जाएंगे. अभी तो हैं, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी ऑल लिव विद इट. आर वी गुड इनफ? हम इसको कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम. एनीबडी हर्ड ऑफ द वर्ड इम्पोस्टर सिंड्रोम? इम्पोस्टर सिंड्रोम इज अपने आप पे ही डाउट होना कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्या इज इट, मैं इसके लायक हूँ कि नहीं, व्हाटएवर. तो इम्पोस्टर सिंड्रोम विमेन में बहुत होता है. कितना भी सक्सेस आ जाता है, मैंने देखा है कि कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, फिर भी लगता है कि एम आई गुड इनफ. दैट आई थिंक मैं हर जगह में ये बोलती हूँ कि I would put more emphasis on changing my son than changing my daughter, because women want to change, they are changing. But अगर बेटे नहीं बदलेंगे ना, तो फिर equal society नहीं आएगा. So another comment to you also on this question about self-doubt. I feel one character, Mrs. Gandhi, in your story, she has a full-fledged family and she's doing so much for the family, everything. जो मेरे ख्याल से हर एक मदर या एक वाइफ करती है इन जनरल. सो हाउ डू यू फील कि उनके अंदर भी कोई सेल्फ डाउट था या कुछ? बिकॉज एट अ लेटर स्टेज शी कम्स टू नो अबाउट उनके हस्बैंड के बारे में एंड शी वाज डाउटफुल कि कहीं मेरे अंदर कुछ कमी, मेरे हस्बैंड बाहर है, ऑल दिस काइंड ऑफ सेल्फ डाउट. बिकॉज रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस एज अ वुमन और एज अ मैन ऑल्सो. So, do you feel कि ये self doubt कहीं ना कहीं रहा होगा आपके कैरेक्टर में भी? Yeah. जो I think self doubt जो है women का, और एक जो limitations जो women face करती हैं, वो it is
limits a woman's world. It is the mere, it's the language and the tropes, the how one understands a woman. You know, even a hope has to be choti si Asha. You know, you can't swallow the world. To swallow the world, you need a man. But हमारी जो आशा होती है वो छोटी सी आशा, छोटा सा, you know, एक दायरा जो which is, you know, given to us in a sense, communicated at various levels which are not conscious. These are operating below the consciousness, you know. It's our favorite song also, at least it was mine, you know. And while singing it, that Choti Si Asha, I never thought of it as a limitation. But then one day I said, well, you know, why Choti Si Asha? Why can't it be inordinate desire? Why can't I have the whole world? Especially when I came across this phrase, swallow the world. You know, so you know, in my creative writing classes, मैं teacher भी हूँ और creative writing पढ़ाती हूँ. So this is what I say to students. You know, swallow the world. You know, you want to be a writer, you swallow the world. You know. So this when we talk about, I think when we talk about patriarchy, when we talk about, you know, men and women, we have to you know, sort of reckon with this fact that the messages of patriarchy can equally come from the women. You know, जरूरी नहीं है कि जो आपको messages मिल रहे हैं वो आदमी से मिल रहे हैं. वो patriarchy के messages हमें औरतों से भी मिलते हैं. और कई बार ये भी कहा जाता है कि शायद औरतों से वो और insidiously ये message आपको patriarchy से के messages मिलेंगे. So, because it is there, it works at the level of, it's subconscious. It is not a consciously formed thing. It is operating, you know, below the level. So, you know, what I began with, कि ये जो सबसे पहला जो war है, वो शायद हमें अपने अंदर लड़ना पड़ेगा, कि जो vestiges जो है patriarchy के, जो हमारे अंदर जो चीज है, जो कह रही है कि तुम ये नहीं कर सकती, the self-doubt. And the self-doubt is within oneself, and it is created by what one calls ideology, which is pervasive, which is working at various levels. तो वो उसको आपको take on करने के लिए, I think the first war is with oneself, और उसी को जीत के फिर one can, you know, sort of I think after that it becomes really easier, because if you know who you are and you know, then it's to get on in the world becomes that much easier. That is if you accept the multiplicity of yourself, that I am this and I am that also. अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो उसमें you know काली का रूप धारण करना ही पड़ेगा, भले आप पार्वती हो हमेशा, you know, पर उस टाइम तो काली बनना ही पड़ेगा, you know. So if you can accept the Kali and the Parvati within you, you know, and to be one doesn't necessarily deny the other. So I mean that is basically how I would say how I would answer doubt. I would also say that it's a bit of doubt is a good thing. To introspect and to look within oneself, it's important. We need to, you know, constantly also, you know, put a question mark on things, you know, जो हमें feel हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसको शायद एक interrogate करने की ज़रूरत है. We cannot go through life saying मैं ही सही हूँ. मेरी मिसेस गांधी तो वैसे ही जा रही थी लाइफ में कि सबको ही पता है कि families अच्छी होती, families are the right way to live. It is to be single is an aberration. कि जो single औरतें हैं वो एक life lead कर रही हैं जो norm नहीं है. मिसेस गांधी तो इसी उससे जा रही थी. तो एक जो self doubt उनमें हुआ पैदा, वो मेरे ख्याल से अच्छे के लिए हुआ और उनके development के लिए हुआ, क्योंकि वो वाली lives are equally fulfilling, productive
it's as important as that of a married woman, you know. So it's kind of this kind of acceptance of other modes of life and acceptance within oneself, not just at an intellectual level, but at an emotional level is, I think, important. I guess if we keep on discussing, there is no end to this discussion at all because there are so many factors, इतनी सारी चीजें हैं कि हम एक एक करके अगर डिस्कस करेंगे तो पूरा दिन भर भी हो सकता है. So I guess let us open the house for questions क्योंकि audience को भी authors से कुछ सवाल करने होंगे उनके books के बारे में, उनके बारे में. So अगर आपके मन में ऐसे कोई सवाल है, so you can just raise your hand and ask questions and let me know that आप किन से बात करना चाहते हैं. Alisha से I have one question of the audience first. Yeah. How many of the young students here, you know, if some of you can talk about, you know, what is success, what does success mean to you? Successful होना चाहते हैं कि नहीं? हाँ? कितने लोग successful होना चाहते हैं? Almost 100% ना? अच्छा हमको बताइए क्या what does success mean? What does it mean to be successful? Okay, we'll just pick up 2-3 answers. Is that okay? Yeah. Huh? Just 2-3. Anybody? सक्सेसफुल होना चाहते हैं बट होता क्या है सक्सेस? जो आप चाहते हो अगर आप वो बन जाए तो सक्सेस है. बिल्कुल सही. ठीक है. ठीक है. To be self satisfied. बिल्कुल. Impacting the life of others. वहाँ से हाँ? एफर्ट्स के बाद फिर वो फुलफिल लगता है कि हम फुलफिलिंग लगता है. कि हमने वो जो मेहनत की थी वो. किसी ने बोला गाड़ी मिल जाएगी वो भी सक्सेस है. किसी ने बोला था पीछे से नहीं शर्माना नहीं है, पैसे कमाना भी सक्सेसफुल होता है. कोई तो बोलो पैसे कमाना है सक्सेसफुल होता है. बोला ना? बिल्कुल ठीक. बिल्कुल ठीक. See, that is the point I was trying to make, है ना? हर किसी की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस अलग अलग होती है ना? मेरी मम्मी है, हम 4 भाई बहन हैं, होम मेकर थी. ओके, उनके लिए सक्सेस का डेफिनेशन है कि देखो मेरे चारों बच्चे कितने सफल हो गए. हाँ, उनको कुछ नहीं चाहिए, पढ़े लिखे सक्सेसफुल हो गए. वो तुम मेरे बच्चे अच्छा कर रहे हैं ना, मैं सक्सेसफुल हो गई लाइफ. ओके, मेरी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस मेरी मम्मी से बिल्कुल अलग है. मेरी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है आई हैव अ फ्रीडम ऑफ चॉइस. आज मैं इतनी मेहनत की इतने सालों तक, मुझे लगता है कि अब मुझे, क्योंकि मेरे पास फ्रीडम है कि मुझे काम करना है कि नहीं करना है, मेरी चॉइस है. ओके, मुझे बाहर जाना है कि नहीं जाना है, मेरी चॉइस है. ओके, मुझे गाड़ी खरीदनी है नहीं खरीदनी है, मेरी चॉइस है. ठीक है ना? तो मेरे को फ्रीडम ऑफ चॉइस है, दैट इज सक्सेसफुल. टुडे आई एम सो सक्सेसफुल दैट आई हैव दैट फ्रीडम टू टेक माय ओन डिसीजंस, लिव माय ओन लाइफ, व्हाटएवर. तो सबकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस अलग अलग है. ओके, ये तो 17 women है and you know there are some women who are fictitious women as well. But what is important is कि हम क्लियर हो जाएं कि हमारे लिए डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है. I was very clear. बहुत टाइम तक मेरा डेफिनेशन था कि मुझे पैसे कमाने हैं, CEO बनना है. And there's nothing wrong with it, by the way. ये जो फ्रीडम आया है ना वो उसके बाद ही आया, उससे पहले नहीं आता ये सारा फ्रीडम्स. Okay, so sometimes definition of success is so personal, so private, but उसकी क्लैरिटी ले आनी चाहिए. ओके ना? अगर क्लैरिटी आ जाती है ना तो फिर मंजिल मिल जाती है, रास्ता मिल जाता है. इट कुड बी एनीथिंग. किसी के लिए इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, यू सेड, दैट इज सक्सेस. सम पीपल फील जॉय आउट ऑफ गिविंग बैक, दैट इज आल्सो सक्सेस, है ना? We can take one question maybe if anybody has. Yes, बच्चा बोलो, आपका नाम बताइए. मेरा नाम वंश पांडुरंग चिमुरकर है और मैं पेंच टाइगर रिजर्व के बहुत पास के एक गांव में रहता हूँ, इसका नाम रायवाड़ी है. तो मेरा एक सवाल है कि जो मैं सीरीज के वुमेन्स देखता हूँ उनमें बहुत ज़्यादा मतलब ड्रीम्स होते हैं, मतलब ड्रीम्स की वजह से उनमें कॉन्फिडेंस आता है, जैसे मैम ने बोला. तो मैं जब देखता हूँ मेरे एरिया में कि वहाँ पे जो वुमेन्स है, जो आपने बोला कि जैसे उनके बच्चों को ही उन्हें सफल करना है, तो उनकी इंडिविजुअलिटी नहीं रहती कि मेरी भी कुछ लाइफ में मुझे भी कुछ अचीव करना है. तो आपको अभी ऐसा लगा है कि हम एक्टिविस्ट बने और कुछ काम करें गाँव में, कुछ काम करें जो औरतें हैं
जिनके खुद के सपने नहीं है पर खुद की लाइफ है, अरे लाइफ नहीं है खुद के सपनों के लिए, वो दो लोगों को बताए। ऐसा आपको कभी लगा है क्या, और आपने मतलब आपको विचार है कि उस क्षेत्र में वो काम करें? वेरी नाइस, पहले तो राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम, बिकॉज आपने ये उम्र में इतना सोचा है, दैट इज अ बिग डील, बहुत बड़ी बात है। बैठिए मैम। या थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। मेरी किताब में एक दिनीशा जो एक्टिविस्ट है, वो किताब के एंड में उनका ये डिसीजन होता है कि वो एक राजस्थान के गांव में जाए और वहाँ पर एक कम्युनिटी है जो क्रिमिनल माना जाता था, और उनकी जो लड़कियां हैं उनका काफी इसी हिसाब से शहरी एक्सप्लॉयटेशन होता था। तो वो वहां पर जाके विमेन्स ग्रुप्स बनाती हैं। पर एक बात, और ये इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगी, कि वो वहां जाती है ये नहीं कि वो कुछ करने जा रही है, वो वहां से सीखने भी जा रही है, क्योंकि वहीं की एक ओल्डर वुमन से वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है, क्योंकि वो वुमन जो आप बोल रहे हैं कि वो उसके पास एजुकेशन नहीं थी, उसके पास कुछ मतलब वो जो हमारे पास जो हमें रिसोर्सेज बोलते हैं वो नहीं था, पर स्पिरिट जो उस वुमन की थी, वो दिनीशा के थ्रू जब वो देखती थी उसको कि इसने जो डिसीजन लिए हैं अपनी लाइफ में, अपनी लड़की के लिए, अपनी बेटी के लिए और अपने बेटे के लिए, इतने बढ़िया डिसीजंस शहर की पढ़ी लिखी और रिसोर्सफुल औरतें नहीं ले पाती हैं। She goes full of admiration for that woman, और वो वाली जो older woman है वो उनकी एक तरह से मेंटोर बनती है वहां पर, और वो वहां के विमेन्स ग्रुप्स बनाती हैं। आपने जो पहले क्वेश्चन पूछा था कि are characters inspired by real life? Yes, characters are impressed, coming from real life. और ये बात मैं कहना चाहूंगी कि जो एक्टिविज्म की बात है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता अगर हम सिखाने जाएं किसी को। इट इज बिकॉज वो जो दूसरी लाइफ है उसमें बहुत कुछ है हमें सीखने के लिए। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पढ़ लिए तो हमें ही सब कुछ पता है, नहीं पता है। मुझे जो अपनी ऑटोनॉमी, अपनी फ्रीडम के लिए बहुत कुछ गांव की औरतों से सीखने की जरूरत है। वो मैं नहीं कर सकती जो वो करती हैं, वो जो जिस तरह से ऑटोनमस लाइफ लीड करती है, जिस तरह से वो डिसीजंस लेती है, जिस तरह से जो वो संभालती है चीजें, आई एम यूजलेस। In a sense, city life has made me soft, and it has made me, all the privileges I've had, they've taken away that inner fire from me, तो वो ये जो आप बोलते हैं, आपका जो सेंटिमेंट है उसका, आई एम रियली आई प्रेज दैट, पर वो भी पहचानने की जरूरत है कि वो कौन सी जो फायर वहां बर्न कर रही है, जिसके आगे आपको भी हाथ जोड़ने की और दुनिया को हाथ जोड़ने की जरूरत है। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so with this, I guess we'll come to an end of this discussion, क्योंकि दूसरे सेशंस भी हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी इस डिस्कशन को कंक्लूड करने के लिए। आप मेल हो, फीमेल हो, जेंडर हो, हमारी जो सोल है इट हैज नो जेंडर, है ना। दूसरी चीज ये है स्ट्रेंथ एंड बैरियर, ये हमारे घर से शुरू होती है और घर पे खत्म हो सकती है। अगर हम हमारे हर फैमिली मेंबर का सपोर्ट बने, हर फैमिली मेंबर को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, हर इंडिविजुअल को अपना ड्रीम, अपनी इंडिविजुअलिटी जरूर मिलेगी। हमें इसके लिए सोसाइटी के तरफ देखने की जरूरत नहीं है। आप बच्चे हैं तो आप ये चीज कर सकते हो, है ना। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। यस, या And are the norms creating storms within the minds of the aunties here? very nice, very nice. And also I would like to say that आप अनीशा मोटवानी जी and अनुराधा मारवा जी को फॉलो कीजिए। You can ask them questions अगर आपके मन में कोई भी questions है later on. Buy their books, get through the books,
पढ़ना एक बहुत अच्छी चीज है, इससे हमें बहुत सारी चीजें पता चलती है, राइट? थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग. थैंक यू सो मच. Okay, thank you, guest. Your talk was really inspiring, I'll say. And aunties of Vasantunj, ma'am, that was totally admirable. And other than that, Anisha, ma'am, that was seriously, we should think that how small things actually matters. So I really admire. So audience, I am sure that you would have been taking up back a great spark of thoughts and ideas that were shared by our guests on the topic of this session. Thank you for joining us and we will meet you tomorrow in OCLF. Happy wisdom everyone.